Hello students, I welcome you all for today's session. Students, in today's session we are going to be doing your unit 7 section C. Okay, and ये आपका last chapter है for in this session and in this book also. Okay, and this is a very interesting play and this is a very small part of the play. Actually ये बहुत बड़ा play है and we are just going to discuss one part of this play. When you go to your higher classes तब आप ये पूरा play करोगे properly. Okay, so yes, the name of the play is The Chocolate Cream Soldier. Okay, और ये जो play है ये पूरा describe कर रहा है war के scene को. Okay, and वहाँ पे एक soldier होता है जो भाग के छुपने के लिए आ जाता है किसी के घर पे. ठीक है, और वो लड़की जिसके घर में छुपने के लिए आता है, she is the fiancé or she is engaged to one of the soldiers only. Okay, high officer of the soldier. So and धीरे धीरे उनको पता चलता है कि जो हाई रैंक ऑफिसर है वो सोल्जर है, वो कितना अच्छा सोल्जर है. Okay, so this is the main theme of the play. So let us start. I would like all of you to open up page 142. Okay, so I hope you all are ready. चलो शुरू करते हैं. Now introduction. During times of war, do you think the soldiers of warring countries have anything in common? Do you think they are different in any way? So अब basic theme war की है. Okay, and इस पूरे play में हम एक चीज़ ये भी देखेंगे कि कैसे जो जिन दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है, 2 या 3 या 4 कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है, तो उनमें फ़र्क क्या होता है, सोल्जर्स में क्या फ़र्क होता है. ओके, नाउ सिंस स्टूडेंट्स ये जो प्ले है, दिस इज़ अ लिटिल लेंथी प्ले, सो इट इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन 2 videos. ओके, दिस इज़ video 1 and rest of the play we are going to do today only in the video 2. ठीक है, so video 1 I'm going to start now. Let's see who the characters are. So we have 2 characters basically, character in the play. Raina, a young noble man, an enemy soldier. और ये कहाँ पे है? The year is 1885. Okay, Serbia and Bulgaria are at war. So ये 2 countries है जिनके बीच में war चल रही है, Serbia and Bulgaria. Raina, a young Bulgarian noblewoman, is told that a man to whom she is betrothed. Now betrothed का मतलब होता है engaged, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है. उसका नाम है Sergius. Okay, has led a brave and successful cavalry charge. Cavalry का मतलब होता है students team of soldiers. Okay, so उसने पूरा वो head किया था Sergius ने. So charge in the recent battle. As she rejoices, she is also given the news that Serbian soldiers are escaping through their city. So जो Sergius है वो बल्गेरिया से है. Okay, and वो बल्गेरिया के आर्मी का हेड है. एंड राइना के पास एक और खबर पहुंचती है, तो उसको पता चलता है कि जो सर्गियस है उसने बहुत अच्छे से बैटल लड़ी और वो लीडर था. एंड जो सर्बिया के सोल्जर्स हैं अब वो हार चुके हैं और वो डर के और वो भाग रहे हैं. रनिंग फ्रॉम हिज परसुअर्स एन एनिमी सोल्जर क्लाइम्स इनटू राइनाज रूम. सो एक उनमें से जो सर्बिया का सोल्जर था वो भागते भागते बचने के लिए अचानक परसुअर्स का मतलब होता है बल्गेरियन. ओके, मतलब जो उनको चेस कर रहे हैं. एन एनिमी क्लाइम्स एंड इनटू राइनाज रूम. सो उनमें से एक जो एनिमी सोल्जर होता है, एक मैन, वो राइना के कमरे में आ जाता है बचने के लिए. दो अलार्म्ड एट फर्स्ट, शी शोज पिटी फॉर हिम बाय अलाउइंग हिम टू हाइड इन हर रूम. राइना गेट्स टॉकिंग विद हिम and finds out that he carries chocolates instead of ammunitions in battle. So राइना को पता चलता है कि वो जो सोल्जर है वो सर्बिया का है और राइना को थोड़ा तरस आता है उस पर, उसकी सिचुएशन देख के, और वो कहती है कि ठीक है, मतलब उसको अलाउ कर देती है छुपने के लिए. ओके, एंड राइना उससे बातचीत करती है और राइना को ये पता चलता है कि वो जो सोल्जर है जो छुपा हुआ उसके रूम में, उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं.
तो वो अपनी पॉकेट में चॉकलेट्स डाल के लेके जाता है, rather than ammunitions. Ammunitions का मतलब होता है their weapons, the gun or the gun that they carry or the bullets that they carry. Okay, so अब play हमारा शुरू हो रहा है. This is the background. So man, अब ये man जो soldier है वो hungrily, I wish I had some chocolates now. Raina stares at him, unable to utter her feelings. Then she sails away to a chest of drawers and returns with a box of confectionery in her hand. So वो आदमी कहता है कि आई विश मुझे मेरे पास चॉकलेट्स होते अब. तो रायना पहले उसको घूरती है. शी वॉज घूर इसलिए रही है क्योंकि शी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे सोल्जर उनको कहेंगे फॉर यू नो लाइक फॉर चॉकलेट्स. बट रायना ने कुछ नहीं कहा. रायना फिर गई अपने कमरे में एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स स्टूडेंट्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ कबर्ड. उसमें काफ़ी सारे ड्रॉर्स होते हैं. ओके, 5 to 6 ड्रॉर्स होते हैं. तो उन्हें ग्रुप ऑफ ड्रॉर्स को हम कहेंगे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. एंड वो वहाँ से निकाल के एक बॉक्स लेके आती है अपने हाथ में. रायना, अलाउ मी, आई एम सॉरी आई हैव ईटन देम एक्सेप्ट दीज. शी ऑफर्स हिम द बॉक्स. मैन ravenously means hungrily. You are an angel. He gobbles the chocolates, creams, delicious. He looks anxiously to see whether there are any more. There are none. He accepts the inevitable with pathetic good humor and says with grateful emotion, bless you, dear lady. You can always tell an old soldier by the inside of his holsters. Now holsters का मतलब होता है स्टूडेंट कि हॉल्स्टर एक तरह की वो लेदर केस होता है जिसमें गन्स की बुलेट्स रखी जाती हैं. तो वो कहता है एंड कार्ट्रिज बॉक्सेस. कार्ट्रिज अगेन मीन्स जिसमें हम वो रखते हैं. ओके, गन्स बुलेट्स रखते हैं. द यंग वंस कैरी पिस्टल्स एंड कार्ट्रिजेस. द ओल्ड वन कैरी ग्रब. ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट क्या होता है, रायना जाती है. रायना उसको वो बॉक्स पकड़ाती है और कहती है यस दिस इज़ अ बॉक्स, इसमें चॉकलेट्स हैं, आप खा लीजिए. आई एम सॉरी मगर कुछ मैं खा चुकी हूँ. मैन थैंक्स हिम एंड वो सोल्जर चॉकलेट्स खा लेता है. वो और खाने की कोशिश मतलब और खाना चाहता है बट उसके पास है नहीं. और वो थैंक यू कहता है, उसको ब्लेसिंग देता है और कहता है कि यस, हम जैसे जो सोल्जर्स होते हैं, आप ये देखोगे कि बहुत जो यंग सोल्जर्स होते हैं उनके पास हमेशा पिस्टल्स होती हैं, कार्ट्रिजेस होती हैं. बट मेरे जैसे जो ओल्ड मैन हो, थोड़े से ओल्ड एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स होते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए अपने पास कैरी करते हैं. रायना स्टिफली, आर सोल्जर्स आर नॉट लाइक दैट. सो रायना उसको कहती है वेल, हमारे कंट्री के, हमारे देश के मतलब बल्गेरिया के सोल्जर्स ऐसे नहीं हैं. मैन, ओ येस दे आर. There are only 2 sorts of soldiers, old ones and young ones. I have served 14 years. Half of your fellows never smelt powder before. Why? How is it that you you have just beaten us? Sheer ignorance of art of war, nothing else. Indignantly, I never saw anything so unprofessional. सो वो आदमी कहता है अब रायना ने कहा था ना कि नहीं हमारे सोल्जर्स ऐसे नहीं हैं. बट वो आदमी कह रहा है कि नो, तुम्हें गलत फहमी है, आपके सोल्जर्स भी ऐसे हैं. तो वो आदमी कह रहा है कि यस, मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 तरह के सोल्जर्स होते हैं. यंग जो होते हैं वो हमेशा गन्स रखते हैं. बट मुझे 14 साल हो चुके हैं. एंड व्हाट आई हैव सीन कि आपके जो आर्मी है उनमें से आधे लोगों ने तो कभी भी गन का पाउडर भी स्मेल नहीं किया होगा. एंड इसकी वजह से वो हमें हरा चुके थे क्योंकि उनके पास गन्स ज़्यादा थी. एंड वो कह रहा है कि ये सिर्फ एक इग्नोरेंस थी. और इग्नोरेंस मतलब उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जो एक वॉर में फॉलो करने चाहिए थे. तो वो चीटिंग करके एक तरह से हमसे जीते हैं. एंड आई हैव नेवर सीन एनीथिंग सो अनप्रोफेशनल. तो वो आदमी कह रहा है कि ये बहुत अनप्रोफेशनल था. नाउ वी आर गोइंग टू गो टू पेज 143 स्टूडेंट्स. सो रायना कहती है, ओह मॉकिंगली मीन्स बड़े टॉन्ट
तरीके में. Oh, what is unprofessional to beat you? Well, man, welcome. Is it professional to throw a regiment of cavalry on a battery of machine guns with the dead certainty that if the guns go off, not a horse or men will ever get within 50 yards of the fire? I couldn't believe my eyes when I saw this. So, रायना कहती है कि नहीं, इतना अनप्रोफेशनल क्या चीज़ है इसके बारे में. सो रायना कहती है कि व्हाट इज़ सो अनप्रोफेशनल अबाउट दिस. तो वो मैन एक्सप्लेन करता है, वेल, ये बहुत अनप्रोफेशनल है क्योंकि इसमें प्रोफेशनल बात क्या है, क्योंकि तुमने जो तुम्हारे सिपाही हैं सर्बिया के, उन्होंने बल्गेरिया के सिपाही, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गन्स के साथ भी लड़ाई की, मशीन गन के साथ, और उन्होंने हमारी तरफ जो और एक्स्ट्रा मशीन गन्स हैं वो भी चलाई हैं. ओके, सो दिस वाज नॉट फेयर. और हाँ, विद डेड सर्टनिटी दैट इफ़ गन्स गो ऑफ नॉट अ हॉर्स. तो जिस तरह से मशीन गन से उन्होंने हमें अटैक किया है वो पक्की श्योरिटी थी कि यस, कोई घोड़ा भी नहीं बच पाएगा. एंड विद इन 50 यार्ड्स ऑफ द फायर. सो वो आदमी कह रहा है कि मैं बहुत शॉक्ड हो गया था इस चीज़ को लेके, बिकॉज दिस वॉज नॉट प्लान्ड एंड दिस वॉज नॉट डिसाइडेड. रायना ईगरली, डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज? ओ टेल मी अबाउट इट, डिस्क्राइब इट टू मी. अब रायना का एक्चुअली माइंड उसके जिस सोल्जर के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है उस पर अटका हुआ है, यू नो. सो रायना कहती है, रायना का अचानक से ध्यान चला गया कैवलरी चार्ज पे, जो जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है. वो इंचार्ज था उस पूरी टीम सोल्जर्स का, कैवलरी का. तो वो कहती है कि प्लीज़ मुझे कुछ बताओ उनके बारे में. मैन, यू नेवर सॉ अ कैवलरी चार्ज डिड यू? तो वो मैन पूछता है, क्या तुमने कभी भी कैवलरी चार्ज नहीं देखा है? तो रायना कहती है, हाउ कुड आई, मैं कैसे देखूं? मैन, परहैप्स नॉट, ऑफ कोर्स. वेल, इट्स अ फनी साइट. इट्स लाइक स्लिंगिंग अ हैंडफुल ऑफ पीस against the window pane. First one comes, then 2 or 3 close behind him, and then rest of them all in lump. तो वो आदमी बहुत सिंपल तरीके से रायना को समझाता है कि यस, तुमने कभी नहीं देखा. वेल, वो इस तरह से है, सीन ऐसे होता है जैसे हम हैंडफुल ऑफ पीस को विंडो पे उछालें तो पहले एक दिखेगा, एक गिरेगा, उसके बाद में 2 आएंगे, 3 आएंगे, एंड देन द होल टीम फॉलोज. Okay, now Raina, her eyes widening as she raises her clasped hands aesthetically. Okay, aesthetically means, yes, aesthetically students means in a very surprised way. Yes, first one, the bravest of the brave. So Raina कहती है, हाँ, जो सबसे पहले सबसे आगे होता है वही सबसे ब्रेव होता है, क्योंकि रायना तो अपने उस सोल्जर के बारे में सोच रही है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है, दैट इज़ हर फियोन्से. तो उन्हें हम कहते हैं फियोन्से. मैन, प्रोसिकली, यू शुड सी द पुअर डेवल पुलिंग एट हॉर्स. सो इन मतलब बहुत प्रोसिकली मीन्स एक बड़े डल मैनर में वो बात कर रहा है उस सोल्जर की जो सबसे आगे था, मतलब जो इंचार्ज था. रायना, वाई शुड ही पुल एट हॉर्स? मैन, इम्पेशेंट ऑफ सो स्टूपिड क्वेश्चन. It's running away with him, of course. Do you suppose the fellow wants to get there before others and be killed? Then they all come. They know they are mere projectiles and that it is no use to fight. The wounds are mostly broken knees from the horses canoeing together. So वो आदमी कहता है, वो रायना कहती है कि नहीं, उसने अपना घोड़ा साइड पे क्यों कर दिया, वो लेके भाग क्यों गया? मैन, जो सोल्जर है, वो कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, जो हेड होता है वो अपना घोड़ा लेके साइड पे चला जाता है और वो जो उनके पीछे सिपाही होते हैं उनको आगे कर देते हैं लड़ने के लिए और मरने के लिए. सो एक्चुअली जो हेड होते हैं वो पीछे रहते हैं और वो धीरे धीरे आगे अपने सिपाहियों को भेजते रहते हैं. एंड इट इज़ दो सोल्जर्स who are left with broken knees and arms. And जो घोड़े हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, but the head is always in charge and वो पीछे रहता है हमेशा. ओके, प्रोजेक्टाइल्स का मतलब है स्टूडेंट, या प्रोजेक्टाइल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स द थिंग्स विच आर यूज्ड इन द वॉर. ठीक है, जैसे गन्स हो गई,
कैनन तोपे होती हैं, वो सब चीज़ें. रायना, बट आई डोंट बिलीव द फर्स्ट मैन इज़ अ कावर्ड. आई नो ही इज़ अ हीरो. तो रायना कहती है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान जो है, कावर्ड का मतलब होता है नॉट हैविंग एनी करेज. विदाउट करेज को कावर्ड कहते हैं. तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कावर्ड है, मुझे तो लगता है कि बहुत ब्रेव है वो. अब मैन गुड ह्यूमर्डली मीन्स थोड़ा जोकिंग वे में. दैट्स वाई यू हैव हैड सेड इफ़ यू वुड सीन द फर्स्ट मैन इन द चार्ज टुडे. तो वो आदमी कहता है अच्छा, इसलिए तुम देखना चाहती थी कि जो इंचार्ज है वो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे लड़ाई लड़ता है. रायना ब्रेथलेस, आई न्यू इट, टेल मी अबाउट हिम. सो रायना कहती है यस प्लीज़, मुझे उस इंसान के बारे में बताओ. ही इज़ सो मैन, ही डिड इट लाइक ऑपरेटिव टेनोर. ओके, ऑपरेटिव टेनोर यहाँ का इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑपरेटिव टेनोर का मतलब है द ट्रेन पर्सन. ठीक है, वैसे ऑपरेटिव टेनोर जो होते हैं वो ट्रेन म्यूजिशियंस होते हैं. यहाँ पे दे आर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्रेन सोल्जर, a regular handsome fellow with a flashing eyes and lovely moustache. Shouting a war cry, we nearly burst with laughter at him. But then the sergeant ran up as white as sheet and told us they had sent us the wrong cartridges and that we couldn't fire a shot for next 10 minutes. I never felt so sick in my life, though I have been in one or two very tight places. यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइट प्लेसेस का मतलब होता है चैलेंजिंग सिचुएशन में. एंड आई हैडंट इवन अ रिवॉल्वर कार्ट्रिज, नथिंग बट चॉकलेट. वी हैड नो बेनट्स. बेनट्स का मतलब होता है जो वेपन्स होते हैं. नथिंग, ऑफ कोर्स दे जस्ट कट अस. ओके, सो वो आदमी जो सोल्जर है वो बता रहा है उसको पूरी सिचुएशन कि तुम कह रही हो कि यस जो हेड है वो बहुत ब्रेव था, मगर असली सिचुएशन तुमने सुनी नहीं है. हाँ यस, नो डाउट कि वो जो ब्रेव वो था इंसान, वो बहुत ब्रेव था, गुड लुकिंग था. बट देखो हमारे साथ क्या हुआ. जो हमारे सर्जन हैं, हमारा हेड था, उसने हमें ये बताया कि जो उनके पास कार्ट्रिजेस हैं, जो बुलेट्स हैं, वो गलत हैं. ओके, एंड वो नहीं वो फायर नहीं करेंगी. और अगले 10 मिनट के लिए हमें तुम्हारे सिपाहियों को विदाउट एनी आर्म्स, विदाउट एनी वेपन्स रोक के रखना था, उनका सामना करना था. एंड ये सोल्जर कह रहा है कि मैं इतनी भयानक सिचुएशन में कभी नहीं हुआ हूँ और मेरे पास भी कोई अपनी खुद की रिवॉल्वर नहीं थी. सो सी, अगर हम हारे हैं तो देखो किस सिचुएशन में हम हारे हैं. Okay, so students, now I'm going to carry on the play in the next video. Stay with me and we'll start with page 144.